Welcome friends, I am Dr. G.S. Thami from Thami Eye Care Hospital, Ludhiana. I am the director of this hospital. I have been working here since last 40 years, upgrading our hospital to the latest and today. With every super specialty you ought to know in this era of ophthalmology. Hi friends, my name is Dr. Nimrita Bajaj Dhami and I'm lucky to work in this institute with Sir, and I specialize in cataract, refractive and cornea services. And today we're going to talk about and answer all your queries about LASIK refractive surgery. क्या आपको दिमाग में आता है जब आप अपनी ऐनक उतरवाने के बारे में सोचते हैं? अब आपने सोच लिया कि मैंने ऐनक नहीं पहननी. यस, क्यों पहनोगे? Why should you hide your face behind these spectacles? They don't look good to see clear, but they don't look good on your face. Yes, you have a chance to get them removed. But where? How? First question in your mind is, I don't want to wear my glasses. Now, let's enter a hospital where everything can be checked, done, and skillfully completed to the latest technology. So, जब हम अपने ग्लासेस उतरवाने के बारे में सोचते हैं, so there are two main reasons why you would want to get your glasses removed. First of all, one thing should be very clear that refractive surgery या glass removal surgery is a choice in life. Wearing your glasses is fine, or you want to get your glasses removed. But contact lenses are never an advisable way. If you ask any eye doctor, that is a very temporary or 1 hour or a 2 hour solution. But if you're wearing your contact lenses regularly और आप सोचते हैं कि वो आपके glasses का substitute है, then we really recommend for such patients that it is always better कि वो अपनी glasses निकलवा लें, because contact lens use तो होता ही है, abuse भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. That means either hygiene or either इन्फेक्शंस और सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस जिससे इवेंचुअली आप लासिक सर्जरी के लिए भी फिट नहीं रहते. सो ग्लासेस और रिफ्रैक्टिव सर्जरी इज द आंसर अगर आपको चश्मा लगा हुआ है. कमिंग बैक, अब आप अपनी ऐनक उतरवाना चाहते हैं. व्हाट कुड बी द रीजंस यू वुड वांट टू गेट इट डन? वन इज पर्सनल, इट इज अ चॉइस इन लाइफ. आई डोंट लाइक इट and I feel it is not looking pretty on my face, or we have so many people who come before their marriage, or they want to go abroad or study, that they don't want to wear glasses and they want to get it removed. So yes, marriage is one thing, or when sudden koi life change hota hai, so then they want to get and have a makeover or a change of look. सेकेंड होता है प्रोफेशनल. प्रोफेशनल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एक, कुछ प्रोफेशंस होते हैं कि जिनमें हमारी ग्लासेस हमें कंफर्टेबल नहीं रहती, और कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनमें हमारी सिलेक्शन ही नहीं होती है. कमिंग टू पार्ट वन, suppose a very common example, if somebody is a makeup artist, they don't like कि हम जब अपना काम कर रहे हैं हमारी ऐनक उतरती रहे उस time and it falls off. This is a very common thing that we see. Or if somebody is into modeling or blogger है तब नहीं अच्छा लगता उसको. Or people into sports, it's not very convenient to use it. Second part रहता है selection into our candidature into navy and other things. अब आपका बच्चा, you're a young child of 17 years, yet to appear in +2, but you need to not to be wearing glasses. That's the first line written on your application form. So you are advised to get your glasses removed. Yes, it is 100% correct way and advisable and required. And the whole armed forces, navy, merchant navy, even to this, people going to space are allowed to get laser vision correction done, provided they fall into the correct criteria of glasses removal, and there is a good gap between their interview and the time they got the glasses removed, so that during that period they have not suffered एनी कॉम्प्लिकेशन, यानी कि ऑपरेशन कराने के बाद आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई एंड यू आर स्टेबल इन रिफ्रैक्शन एंड यू डोंट नीड फर्दर ग्लासेस. सो जो क्राइटेरिया सर कह रहे थे, व्हाट आर द क्राइटेरिया we doctors look for apart from your need or your demand when you come for LASIK is, first of all,
unless it is not candidature for Navy, in which we might have to alter the age criteria, but standard criteria होते हैं that the age should be more than 18 years. Your refraction, your glass power should be stable for more than 6 months, और कोई last recent noted increase in number ना हो, कोई significant change in number. That too checked from a validated doctor, not your optical shop wala guy who randomly checks your number. So it should be checked by an eye doctor and your number should be stable for more than 6 months. लेकिन जो आपका सबसे बड़ी आपकी अग्नि परीक्षा होती है वो है हमारे स्कैन्स, योर कॉर्नियल टोपोग्राफी स्कैन्स, जिसके थ्रू अगर आप नहीं निकलते तो आप लैसिक नहीं करवा सकते हैं. सो दो स्कैन्स आर वेरी क्रिटिकल, बिकॉज जो पार्ट हम करते हैं लेजर विजन करेक्शन में या रिफ्रैक्टिव सर्जरी में, ठीक उसमें द कॉर्निया, द पार्ट जो हमारा एक ट्रांसपेरेंट कवर है, जो ब्लैक बॉल हमें नजर आती है उसके आगे एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है कॉर्निया, दैट शुड बी ऑफ अ वेरी गुड थिकनेस एंड अ करेक्ट शेप. Only then we can proceed with laser vision correction. Although laser vision correction is only one part, if that is also not okay, there are answers to that also, but that we shall eventually discuss. अब आपको you should know that कॉर्निया की थिकनेस, कॉर्निया का कर्वेचर differs from community, differs in a country, differs in a region. So we as Indians do not have a westernized or criteria which is available in the Western world. Our cornea is a little thinner. So our choice of surgery is limited, and an important factor in determining what will you need to be done with your eyes. आप बात कर रहे थे जो लोग आर्मी में जाते हैं या नेवी में जाते हैं, उनका स्पेशल क्राइटेरिया उनके प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है. उसका नंबर ठीक होने का एक कारण नहीं होता फॉर सिलेक्शन. उनकी आई की लेंथ कितनी है, उनका कर्वेचर कितना है, उनकी कॉर्नियल थिकनेस कितनी है. सो ऑल फैक्टर्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर यू फिल इन द फॉर्म. वी विल रिक्वेस्ट, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो अपना प्रॉस्पेक्टस साथ लेके आइएगा. उसमें जो रिक्वायरमेंट है वही हम पूरी करेंगे. नहीं हो सकती आपको ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर बताएंगे, और उसके ऊपर है भी आपको, इफ यू आर अनफिट फॉर इट, प्लीज डोंट गेट डिप्रेस्ड. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोफेशंस फॉर यू टू राइज मच अबव व्हाट यू आर प्लानिंग. सो जब हम लैसिक वर्ड यूज करते हैं, लैसिक एक अम्ब्रेला टर्म बन चुका है जिसमें जब जो भी कोई ग्लास रिमूवल सर्जरी है उसको एक आम पेशेंट आकर बोलता है मुझे लैसिक करवाना है. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं. जैसे हम हर सॉफ्ट ड्रिंक को कोक बोल देते हैं, इसी तरह हमें हर पेशेंट आके बोलता है हमें लैसिक करवाना है. लैसिक इज अ अम्ब्रेला टर्म, कॉमनली एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी इन द वर्ल्ड और इन द पब्लिक, बट एक्चुअली फॉर अस एज डॉक्टर्स वी कॉल इट रिफ्रैक्टिव सर्जरी, यानी कि ऐनक या ग्लास रिमूवल सर्जरी. सो इसको हम डॉक्टर्स दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. एक होते हैं कॉर्नियल बेस्ड प्रोसीजर्स, यानी कि जो लेजर से हम आपका नंबर निकाल सकते हैं, या कुछ लोग जो इस कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं उनको हम लेंस बेस्ड प्रोसीजर्स बोलते हैं, जिसमें एक कॉन्टैक्ट लेंस जैसा एक लेंस होता है जिसको हम ICL बोलते हैं, इम्प्लांटेबल कॉलमार लेंस. उसको आई में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वो भी प्रोवाइडेड देयर इज सर्टेन डेप्थ एंड थिकनेस दैट इज अवेलेबल इनसाइड द आई. तो अब हम लेजर विजन करेक्शन, जो लेजर के प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं. वी विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट वाज देयर इन द पास्ट टू नाउ व्हाट ऑल टेक्नोलॉजीज आर वी आर्म्ड विद. एक पूरा मिथ माना जाता है कि वंस आपने ऑपरेशन करवा लिया आपका नंबर दोबारा आ जाएगा. ये था कुछ साल पहले, व्हेन इवन वी वर वेरी यंग, प्रोसीजर था रेडियल कैरेटोटमी. ये प्रोसीजर रशिया से आया, बहुत लोगों ने कराया, मिलियंस वर ऑपरेटेड बिकॉज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन वाज वेरी लेस. इसमें क्या करते थे, कॉर्निया में कट लगाते थे, रेडियल कट्स, जैसे आप खरबूजे की फाड़ी काटते हो. तो उससे जो उसका सेंटर पार्ट होता था वो फ्लैट हो जाता था और नंबर काफ़ी हद तक ठीक हो जाता था. ये कहना कि वो प्रोसीजर गलत है इज रॉन्ग, बिकॉज व्हेन एंड वेयर डन बाय एन एफिशिएंट सर्जन इट वाज एन एक्सीलेंट प्रोसीजर एट दैट टाइम. लेकिन उसका ड्रॉबैक था. कॉर्निया जो भगवान ने आपको एक दिया है और दूसरा मिलने नहीं वाला. आपका दिल बदला जा सकता है लेकिन कॉर्निया नहीं. तो उसकी चेंजेस जो है ना,
उसमें चेंजेस जो नेचुरल आते हैं वो नंबर को बढ़ा देते हैं एज यू ग्रो अप। आपका माइनस नंबर था, कुछ साल बाद वो प्लस बन जाता है, यू बिकम हाइपरोपिक। एंड दिस फियर इज इन द माइंड ऑफ द पेशेंट कमिंग टू अस दैट मैं लेजर करवा ली तो कुछ साल बाद मेरा नंबर आ जाएगा। लेजर विजन करेक्शन से नंबर दोबारा नहीं आता इफ यू हैव फुलफिल्ड all the criteria and the required treatment has been done nicely on you. Yes. So then we moved on to this recent era जहाँ पे सर्जरी शुरू हुई जिनमें प्रिसिशन और जो लेवल था और डे वन रिजल्ट्स थे दे वर वेरी अमेजिंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सर्जरीज थी ये। सो इसमें इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कुछ जिन प्रोसीजर्स में कट क्रिएट होता है या फ्लैप क्रिएट होता है या कोई किसी किस्म का कट दिया जाता है आई में, और एक है कि जिसमें कट नहीं दिया जाता। तो पहला जिसमें कट दिया जाता है जो सबसे ज्यादा कॉमनली हम जिसको समझते हैं प्रोसीजर है, जिसका नाम हमने रिफ्रैक्टिव सर्जरी ही बना दिया है, दिस इज कॉल्ड लैसिक। लैसिक में वी गिव अ बिग कट ऑन द आई, ऑलराइट, एंड वी लीव अ स्मॉल हिंज, और वो उसको फ्लैप बनाकर आई उसे उठाया जाता है, नंबर निकाला जाता है और फ्लैप को वापस रख देते हैं। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली लैसिक। इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव सर्जरी का जो पूरा एक पैराडाइम है, पूरी जो दुनिया है नंबर निकालने वाली सर्जरीज की, वर्ल्ड ऑफ ऑप्शंस है, उसमें लैसिक ये था। सेकेंड पार्ट है जिसमें हम बिल्कुल छोटा, आपकी जितनी छोटी सी स्माइल है वैसे छोटा सा इंसिजन देते हैं, इट्स कॉल्ड स्माइल। उसमें भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, स्माइल प्रो, विच इज एन in my knowledge one of the only FDA approved, in fact the only FDA जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए का जो स्टैंडर्डाइजेशन करता है प्रोसीजर्स को और अलाउ करता है, in my knowledge it is the only FDA procedure, FDA approved lenticular surgery, यानी कि हम छोटा सा कट देते हैं स्माइल जितना, जितनी आपकी स्माइल है, और उसके अंदर जो आपका नंबर है उसको एक लेंटिक्यूल, एक समझ सकते हैं पापड़ जैसा एक लेंटिक्यूल बनता है, उसको उस छोटे से कट से निकाला जाता है। अब ये तो हम समझते हैं कि कट का साइज, कट मीन्स यू आर ट्राइंग टू इंड्यूस सम अमाउंट ऑफ वीकनेस, तो जितना छोटा कट उतना बेटर उसका आई का स्ट्रेंथ, इसको हम बायोमैकेनिकल स्ट्रेंथ कहते हैं। बायो मीन्स लिविंग टिश्यू, मैकेनिकल मीन्स उसकी स्ट्रेंथ कितनी आती है। सो स्माइल में द बायोमैकेनिकल स्ट्रेंथ वाज मच बेटर, एंड इन फैक्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में हम अब वी हैव डन मोर देन 200 आईज इन धामी आई केयर ऑलरेडी। स्माइल प्रो के बारे में अभी बात करेंगे। Coming to the third part of it, LASIK, SMILE, and the third option that is available to us is called as PRK, photorefractive keratectomy. इसको दो तरीके से किया जा सकता है, इसमें एक मैनुअल होता है, एक होता है ट्रांस पीआरके, दैट मीन्स यू आर डूइंग अ फुली मैकेनिकल, फुली मशीन मैकेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग दिस प्रोसीजर। सो पीआरके या ट्रांस पीआरके या पीआरके में दोनों में हम आई में कोई कट नहीं लगाते, आई की स्किन को हल्का सा डिस्टर्ब करते हैं, नंबर निकालते हैं और एक बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस उसके ऊपर रख लेते हैं। द ओनली दिस इज एन एक्सेलेंट सर्जरी, बहुत बढ़िया सर्जरी है। इसमें एक ही ड्रॉबैक था कि इसमें जब स्किन को डिस्टर्ब किया जाता है उसकी वजह से पेशेंट को नेक्स्ट डे पेन, वाटरिंग और थोड़े सिम्टम्स ऐसे रहते हैं, एंड जो विजन की रिकवरी है वो नेक्स्ट डे वाओ फैक्टर नहीं आता। इट टेक्स 2 to 4 वीक्स टू गेट दैट वाओ फैक्टर, एंड जो विजन पेशेंट ग्लासेस के साथ एंजॉय कर रहा था आज वो बिना ग्लासेस में 2 to 4 वीक्स के ओवर एंजॉय करता है, एज एंड हाउ द स्किन कम्स बैक। बट दिस ऑफर्स एक्सलेंट स्ट्रेंथ and a lot of strength it gives to the eye, and future if there is no cut, the strength of the eye is very well maintained. However, the slow visual recovery is something which is a drawback of this surgery, and patients don't like it so much, especially if they have something very immediately to attend to after their refractive surgery. So now what is Smile Pro, what is Visumax 800? थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी ऐनक उतारना चाहते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर जो है वो डिसीजन आपकी इन्वेस्टिगेशन विच अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके ऊपर है। आपका स्माइल होगा, आपका पीआरके होगा, स्माइल प्रो होगा, कि ब्लेड फ्री लेसिक होगा, कि आईसीएल होगा, उन टेस्टों के ऊपर जाता है। सो आई टोल्ड यू बिफोर दैट इन इंडिया द कॉर्नियाज आर थिन, but that doesn't mean LASIK हो नहीं सकता।
because on every eye the technology is customized. आपकी थिकनेस के अकॉर्डिंगली हम आगे मूव करेंगे आपके कॉर्निया का स्ट्रक्चर या कर्वेचर चेंज करने के लिए, चाहे वो स्माइल प्रो हो, चाहे वो ब्लेड फ्री टेक्नोलॉजी हो, चाहे PRK हो. You can be eligible for everything till you have a diseased cornea. यानी कि आपका कॉर्निया वो लेजर को बियर ही नहीं कर सकता. उसकी कंडीशन में बारे में भी आपको आगे बताएंगे, उसको हम केराटोकोनस बोलते हैं. अब you are a sportsman, you cannot expect or dream of an injury to your eye. So the strength lies on the eye. उसमें कोई कट ही ना लगाओ या मिनिमम कट लगाओ. That means you are ideal for Smile Pro. Or if your cornea is thin, is not eligible for Smile Pro, you are an ideal candidate for PRK, or we name it as advanced surface ablation, or in our technology we name it transepithelial photokeratectomy. Remember, these are the most highly numbered, means maximum number of surgeries done in the world are of laser vision correction. It should create no fear in you, provided you are a right candidate. So many myths are there, so many false education columns, speakers on YouTube and on internet. Biased knowledge, ignorance should not make you run away from the choice that you want to get your glasses removed. Get yourself examined, fully investigated, ask questions to your doctor, and you will be fit for one or the either procedure. But remember, the choice of the procedure rests with your consulting doctor. And if all those procedures are available in one institute, you are a lucky one to enter that. So coming back to the question, what is Visumax 800 or Smile Pro? It is the future. It is the future of refractive surgery. This is the most latest technology that we have. बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इस मशीन में ऐड की गई हैं. One of the things which is most beneficial to the patient is that actually जब आप उस मशीन के अंदर lie करते हैं to get a surgery done, it is very easy to preach, but becoming a patient and lying under that machine, it is scary. So patient doesn't want कि procedure इतना लंबा हो कि उसके during वो patient हिल जाए या हमें डर लगने लग जाए. Visumax 800 Smile Pro is the fastest technology to make the lenticule. 8 to 10 सेकेंड्स में लेजर हो भी जाता है, लेंटिक्यूल क्रिएट हो जाता है, साइड कट्स, इंसिजन सब बन जाता है. इट हैपेंस विद इन द ब्लिंक ऑफ अ आई. इनफैक्ट जब हम पेशेंट को सर्जरी से पहले काउंसिल करते हैं, वी ऑलवेज टेल देम कि जब तक आपको पता भी चलेगा सर्जरी हो चुकी होगी. सो दिस इज व्हाट इज मोस्ट कंफर्टिंग टू द पेशेंट कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन है, सो दैट द टाइम ड्यूरेशन दे हैव टू बेयर अंडर द मशीन इज वेरी वेरी स्मॉल. ऑल्सो स्माइल सर्जरी में कुछ जो सिलिंड्रिकल पावर्स हैं उनको निकालने में कुछ हेजिटेशन होती थी पहले. नाउ दे हैव एडेड अ सिस्टम ऑफ सेंट्रल लाइन. सेंट्रल लाइन में हम पहले पेशेंट की 180-90 डिग्री एक्सिस मार्क कर लेते हैं और वो मशीन के अंडर उस एक्सिस को आपकी जो पहले वाली एक्सिस मार्किंग थी उसके साथ अलाइन किया जाता है. तो सेंट्रल लाइन सॉफ्टवेयर की वजह से बैंग ऑन रिफ्रैक्टिव करेक्शन आता है इवन इन सिलिंड्रिकल नंबर्स. So these are two major advantages, and definitely as they have improved the machine, they have created so much more optics and justification that they have done कि जो day one हमें आता था कि best result आना चाहिए जो LASIK में आता है स्माइल में आएगा या 1 week पे आता है, वो हमें इशू नहीं आता. अब हमें बहुत अच्छा लगता है कि स्माइल पेशेंट्स में भी वही रिजल्ट आता है जो LASIK में आता है. इनफैक्ट I advocate Smile to my patients that it is a perfect marriage of LASIK and PRK. हमारा कट बहुत मिनिमल है, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंड इट इज वेरी स्मॉल कट. तो PRK की जो एडवांटेज थी स्मॉल कट और नो कट, वो इस हमें मशीन में मिल गई है. कोई फ्लैप नहीं है, तो जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वाले प्लेयर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि कभी कोई इंजरी हुई और फ्लैप हिल गया, दैट फ्लैप विच वी क्रिएट इन LASIK इज लाइफ लॉन्ग. अगर वो हिल गया तो दैट इज अ प्रॉब्लम. स्माइल में वो इशू भी नहीं आता. एक छोटा सा इंसिजन है, उसके अंदर से नंबर निकाला एंड दैट लाइज अंडर योर अपर आईलिड, सो दैट इज ऑलवेज हिडन. और PRK के जो डिसएडवांटेजेस थे कि वो
पेन कॉज करता था, हेज कॉज करता था और इरिटेशन कॉज करता था या डे 1 हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था, वो सारे डिसएडवांटेजेस जो हैं वो स्माइल में नहीं है। तो यानी कि हमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कट में बहुत अच्छी आई की बायोमैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल रही है एंड इट इज अ परफेक्ट अमालगम दैट गिविंग स्ट्रेंथ एंड अ गुड एंड अ वेरी गुड रिफ्रैक्टिव आउटकम. So this is what is the advantage of choosing Smile and in fact Smile Pro.